सदी की लिखी किताब के शायद होने की तकलीफ में आप सबको तहे दिल से इस बार करना चाहती हूँ। Ladies and gentlemen, with a big pride, I would like to I'm pretty sure whatever Mohari has dreamt, our Shahid Siddiqui sir is there. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good evening, ladies and gentlemen. On behalf of Rupa Publications India and the organizing team, it is my absolute pleasure to welcome you all to the launch of Eyewitness India from Nehru to Narendra Modi, authored by eminent journalist, editor, and former parliamentarian Mr. Shahid Siddiqui. We are truly honored this evening to be present on such a distinguished gathering of leaders, thinkers, writers, and well-wishers who have joined us to celebrate the important occasion. It is my privilege to extend a warm welcome to our chief guest, Mr. K.R. Ramesh Kumar, former minister and former speaker of Karnataka. Also with us today, Mr. Akhar Patel, eminent journalist, author, and activist. We will be sharing all their reflections on the book on Mr. Shahid Siddiqui's remarkable journey. Presiding over this evening's function, it gives me great pleasure to welcome my beloved father too, Mr. R. Roshan Beg, former Minister, Government of Karnataka. And finally, to all of you friends, colleagues, members, and of course, In the year of 2025, we are so. Let me drop applause. With this, I request Rajat Dasar from Rupa Publications to present your thanks. Right now, knowing our history, that is our responsibility. So today, through this great contribution, we are all fortunate to know what is right. Many of us know the rumors. Many of us know वो ऐसे कहे थे, ये ऐसे हुआ था, शायद ऐसे हो गया होगा. किसको पता? हम तो अभी आए इस दुनिया में, हमको नहीं पता है. And ladies and gentlemen, I just want to recall, I wanted to tell you, you know what? How many of you can just guess when was Shahid Siddiqui's birthday? When did he born? I need to know the date and month. Absolutely, ma'am. When we got independence, when we know our country is freedom now, शायद भगवान ने, शायद अल्लाह ने भेजा है, जाओ सारी दुनिया को बताओ, यही सच है, ये सही रास्ता है. That's, as Abdul Kalam ji says, the pen is the most mightiest which can change the world. Absolutely. So today, the mightiest weapon is changing the world. With this, I request our chief guest, Shri K.R. Ramesh Kumar sir, have just released the book of former minister and the former speaker of Karnataka. So Karnataka Vidhana Sabha 16ನೇ ಸ್ಪೀಕರ್ ಆಗಿದ್ದರು ಶ್ರೀ ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಸರ್. 6 ಬಾರಿ ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ರು, ಸಚಿವರಾಗಿ ಹಲವಷ್ಟು ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿದ್ರು. ದಯಮಾಡಿ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ 2 ಮಾತುಗಳು ಸರ್. I request you to say a few words. Oh my God. Just now Roshan sir has just told. I was just talking about his contribution to our society. You have also contributed a very, very special moment, and I would like to take this moment to thank you. आपने एक बार रोशन सर का लाइफ ही बचाए थे, and thank you very much for that sir. शायद बड़े लोगों का ऐसे छोटी छोटी बातों को ज्यादा like, yeah, I do it. Thank you sir. ಇವತ್ತು ಸರ್ ಅವರ ಜೀವ ಉಳಿಸಿದಿರಿ ಮತ್ತು ಬಹಳಷ್ಟು ಅನೇಕ ಹುದ್ದೆಗಳ ಮುಖೇನ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜವನ್ನ ತೀರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ದಯಮಾಡಿ ಕೆಲವು ಮಾತುಗಳು ಸರ್, ಪ್ಲೀಸ್. About the present Prime Minister, we should never cross the lines of civility when we come to public forums. We don't agree with him on certain issues. That's okay. This is part of democracy. You don't have to agree with everybody on everything. After you were declared independent and you became a sovereign republic, please remember, even the loans that this country owed to foreign countries,
The major share came to us and the lesser portion went to Pakistan. From a country shattered by communal forces, famine, loans, Nehru, and subsequently, they had done their best. When you took over, The last couple of things I will say is that Martin Luther King speaks of Mr. Shahid Siddiqui's book, the narrative of the Nehru years is not flat. It's actually a very interesting and very objective reconstruction of the Nehru. Did not just oppose Indira Gandhi's emergency. कहना था कि क्योंकि उस वक्त देसी कार नहीं थी और उस वक्त बाल भी ज्यादा थे, आज कलम हो गए इसलिए टोपी पहनवा, तो उस वक्त बाल बचाने की कोशिश में टोपी पहना था। अब उन्होंने टोपी और कुर्ता पजामा से पहचान ली है रोशन बेटा, तो वो वहाँ आवाज करे फिर वो कोई एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं शाहिद सिद्दीकी इस मुल्क के, तो उनके हौसला अफजाई करने के लिए जब उनकी किताब रिलीज हुई दिल्ली में, तो मैं गया था। वहाँ फारूक अब्दुल्ला साहब, सलमान खुर्शीद साहब और रविशंकर प्रसाद, ऐसे शशि तरूर सब मौजूद थे। तो मैं समझा कि दक्षिण भारत साउथ इंडिया में भी इनकी किताब का एक लिस्ट का जलसा रखा जाए। इसके लिए मैं तमाम हर हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, जैन, सिख सब जमातों को यहाँ जमा के जलसा किया। मैं तमका सबका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे एक फ़ोन पर कॉल पर लबैक कहते हुए इतनी बड़ी सी तादाद में आए, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। ऐसे शख्सियत जो हैं शाहिद सिद्दीकी जैसे, इनकी हिम्मत देना चाहिए, इनको क़ुव्वत देना चाहिए, ऐसी ताकत है। सर, इसमें जो नेहरू से नरेंद्र मोदी तक की जिक्र किया है, क्या कुछ ऐसी बातें हाईलाइट की गई हैं? आप पढ़ो, पढ़ के मालूम। आई विटनेस का जो शाहिद सिद्दीकी साहब ने किताब लिखी है, कहीं ना कहीं ये देश के अंदर सियासी शऊर नहीं है, ये समाजी शऊर है। जो उनका अनुमान है, आई विटनेस इंडिया फ्रॉम नेहरू टू नरेंद्र मोदी, नेहरू जी को भी यन लगता है, नरेंद्र मोदी जी को भी यन लगता है। ये दो यन में बहुत फ़र्क है। जिस तरीके से मुसलमानों ने देश की आज़ादी से लेकर अब तक अपने वक़ार के लिए, अपने काम के लड़ खड़ा रहे हैं, इसको बनाने के लिए, इसकी मजबूती के लिए शाहिद सिद्दीकी साहब एक ऐसे प्लेयर हैं जिनका इनके वालिद गांधी जी से पहले सियासत में ख़दम रखा था। ये दिल्ली में भी इसका इंतज़ा हुआ किताब का, और बेंगलुरु भी इंतज़ा रोशन बेग की सदारत में, बेग साहब की सदारत में। आज जो प्रोग्राम हुआ, कहीं ना कहीं इतने पढ़े लिखे, जानदार, समझदार लोग बैठे थे। मुझे उम्मीद है आज के इस किताब के इनॉग्रेशन में बहुत सी चीज़ें सीखने को मिली, बहुत सी चीज़ें देखने को मिली, और हम शुक्रगुजार हैं रोशन बेग साहब के और शाहिद सिद्दीकी साहब के। आने वाले दिनों में मुसलमान उसी तरह से लड़ेगा जिस तरह से इनको लड़ना चाहिए। एक दिन ये भारत देश में मुसलमानों का मकाम बरकरार रहेगा, यह उम्मीद है। देखिए, 70 साल इस देश के अंदर कांग्रेस पार्टी ने हुकूमत की। अगर कांग्रेस पार्टी चाहती, ये जो लोग इस्लाम के और मुसलमानों के ख़िलाफ़ उठ खड़े हैं, इनको कभी का दफन कर देती। लेकिन सियासी शऊर के लिए, ये वोट बैठकाट करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने इसको इस्तेमाल किया। ये नतीजा आज मोदी की गवर्नमेंट में लोग भुगत रहे हैं। आने वाले दिनों में उम्मीद है कि हर घर से एक मुसलमान लड़ाई के लिए निकलेगा, जो पहले निकलता था। क्योंकि 800 साल मुसलमानों ने इस देश में हुकूमत की, तब हिंदू जाके बहुत सेफ था। आज ना हिंदू सेफ है, ना मुसलमान सेफ है। इन सियासत की लड़ाई में दोनों को काटा जा रहा है, मारा जा रहा है। आज जो शाहिद सिद्दीकी साहब की बुक जो आई विटनेस थी, वो एक पॉलिटिकल नरेशन करके बोल सकते हैं, और जो ये पहले प्रधानमंत्री से लेके अब तक के जो इवेंट्स हैं वो उनकी बुक में समराइज किए हैं। और ये सीजन जर्नलिस्ट और पॉलिटिशियन रह चुके हैं, और मैं शाहिद सिद्दीकी साहब को मुबारकबाद देता हूँ कि इतनी अच्छी तरह ये बुक में जो इवेंट्स 1960 से लेके अब तक जो हुए हैं वो नरेट किए हैं और समराइज किए हैं। देखिए, वो हर दौर का एक एक नरेशन किए हैं।
सो जैसा हिंदुस्तान बदलता गया वो भी उनके नरेशन और जो जो चैलेंजेस थे वो बहुत ही अच्छी तरह उनके बुक में लिखे हैं, और जो पास में उनकी जो पर्सनल एक्सपीरियंसेस इन लीडरों के साथ थी वो अच्छा नरेट किए हैं, और जो आने वाला जो अब की जनरेशन है और आने वाली जनरेशन को ये बुक पढ़नी चाहिए, और जो जो पॉलिटिकल इंटरेस्ट रहता है और जो करंट अफेयर्स का इंटरेस्ट रहता है ये बुक पढ़नी चाहिए। ज़्यादा से फंडामेंटल राइट्स तो ये क्योंकि शाहिद सिद्दीकी साहब ऑलवेज जर्नलिस्ट फर्स्ट रह चुके हैं, इसीलिए कुछ सवाल पूछे हैं और फंडामेंटल राइट्स के बारे में भी सवाल पूछे हैं। कि ये जो किताब रिलीज हुई आई विटनेस बोल के, ये जनाब शाहिद सिद्दीकी साहब दिल्ली में नई दुनिया के एडिटर वगैरह हैं, लिहाजा उनका नज़रिया जो है वो शुरू से अब तक के सारे प्राइम मिनिस्टरों के बारे में उनका नज़रिया क्या था और किस किस ने क्या क्या किया उसके बारे में उन्होंने एक किताब के जरिए मालूम कराने की कोशिश की है। उस किताब का नाम है आई विटनेस, जिसको इसके ज़रिए उन्होंने सारे प्राइम मिनिस्टर्स तकरीबन जवाहरलाल नेहरू से अब तक के सारे प्राइम मिनिस्टर के बारे में उन्होंने जिस किसी से मुलाकात की और क्या क्या बातें की और उन्होंने क्या पॉलिसियाँ इख्तियार की उसके बारे में उनके ख्यालात का इजहार करने के लिए किताब लिखी है। लिहाजा उसका आज इनाग्रेशन था, इजराई थी किताब की। जनाब रोशन बेग साहब उसका पूरा इंतज़ाम और उन्होंने और उनके फर्जंद रोमान बेग ने इसका इंतज़ाम किया था यहाँ रेडिसन होटल में बेंगलोर में। लिहाजा वो पूरा इनाग्रेशन अटेंड करके ये किताब सब लोग ख़रीद के जा रहे हैं और बहुत बड़ी बड़ी शख्सियतें यहाँ कर्नाटक की जमा हुई थी। मैं मुबारकबाद देता हूँ जनाब रोशन बेग साहब को इतना अच्छा इंतज़ाम इजराई का किताब की इजराई का करने के लिए। शुक्रिया। See, Mr. Shahid Siddiqui is a senior most journalist of India and is a politician also. The book what he has written, Eyewitness, means from the Prime Minister Jawaharlal Nehru's tenure till Narendra Modi's existing tenure, with whoever the Prime Minister has interacted with them. So he has expressed his experience, his views in that book. So today was the release of his book in Bangalore, organized by Janab Roshan Beg Sahab, former minister, and his son Mr. Ruman Beg Sahab. So book, we should see the contents. It is his views, author's views, how he interacted with the Prime Ministers, previous minister and the existing present Prime Minister. He has expressed his views. So we should go through the book, and it's a nice thing to be there in the history that how the Prime Minister have worked, functioned previously and presently, how they are doing and what best they have done for the country. It's a good book. Thank you very much. What is the main aim of the book and minorities? No, it's not minorities or majority. He has written the book Eyewitness, and he is witnessing with whom he has interacted. What he has interacted with the Prime Ministers, he is witnessing that. That's what he has mentioned in the book. Thank you. आज की जो हालत है वो मुसलमानों की जो हालत है, आज अच्छा मैसेज देखो ही, बेहतरीन मैसेज देखो ही, जो मुसलमान क्या चीज़ है, क्या कर सकता मुसलमान, आगे कैसा बढ़ सकता, बहुत अच्छे मैसेज देखो ही। जितने भी पुराने जितने भी साथियां थे आज एक पन पे एक टेबल पे आके बैठे थे। बहुत अच्छा कोर्ट था, डिसेंट कोर्ट था, बहुत एजुकेटेड कोर्ट था, लेकिन बहुत अच्छा मैसेज बहुत अच्छा देखो रहमान सिद्दीकी ने बहुत अच्छा मैसेज दी। इंशाल्लाह देखेंगे मैसेज के बारे में क्या आता है। 30 साल के बाद में अच्छा प्रोग्राम भी हो गया इंशाल्लाह। ये यंग जनरेशन के वास्ते, हमारे बच्चों को, हमारे नवासे के वास्ते हमें लेको ही है, फ्यूचर के वास्ते ये पढ़ेंगे को हमें खुद खास लेको ही है। इसका मैसेज पूरे बच्चा में अंदर नॉलेज कर पाए। कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक मैसेज पूरा ऑल ओवर इंडिया को एक मैसेज है, हर मुसलमान को एक मैसेज है, इसके बारे में जानो करो। सैयद बाबू मंगलाजपुरम। गजरा हुआ है तो क्या मैसेज देना चाहिए? मेरा मैसेज ये है कि पढ़िए और जानिए और सच्चाइयाँ पहचानिए। कौमें बनती हैं जब वो पढ़ती हैं, जानती हैं, पहचानती हैं
और इस्लाम जो मुसलमान है उसके लिए पढ़ना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि अल्लाह ताला ने फ़र्ज़ कर दिया है उसके लिए इल्म हासिल करना। और इल्म जो है वो सिर्फ सुनने से नहीं होता, वीडियो देखने से नहीं होता, इल्म के लिए किताबें पढ़नी होती हैं। आप पे किताब नाजिल की गई थी, आप किताबों की इज्जत करना सीखिए, ये मेरा पैगाम है। और मेरी किताब का मकसद सिर्फ यही है कि लोगों को तक सच्चाइयाँ पहुँचें। जो मैंने अखबार से काम किया सारी ज़िंदगी, अब वो मैं किताब के ज़रिए कर रहा हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। बहुत शुक्रिया जी। जिस तरह की मुश्किलों को सामना करना पड़ा, कोई मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा, अल्लाह ताला ने हर मुश्किल आसान कर दी, मुझे किसी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा। बहुत बार जेल चला गया, मेरे वालिद भी जेल चले गए, लेकिन मैं उसे मुश्किल नहीं मानता, मैं उसे एक रास्ते का आसानी मानता हूँ, क्योंकि जब तकलीफ आती है तभी आदमी सीखता है। इसलिए तकलीफों को मुश्किल नहीं मानता, मैं तकलीफों को सबक मानता हूँ। सर, वन टेक होम मैसेज जी, वन टेक होम मैसेज फ्रॉम दिस बुक। टेक होम मैसेज एक ही है कि किताब पढ़िए, जो मैंने यहाँ पे कह दिया, और किताब पढ़ के सच्चाई जानिए और सच्चाई पहचानिए, और सिर्फ बातों पे मत जाइए, और अल्लाह ताला पे और खुदा पे और खुदी पे भरोसा कीजिए, दूसरों पे भरोसा मत कीजिए। अपने अपने पैरों पे खड़ा होना सीखिए। अल्लाह ताला भी उस कौम की हालत नहीं बदलता जो खुद अपने हालत बदलने को तैयार ना हो। तो आपको अपनी हालत खुद बदलनी है, किसी पे इंतजार नहीं करना। जी जी। सहाफ़ी की तरीके से तज़किया किया है और बहुत ही अच्छी बातें बताई है। जैसे 1960 और 1965 की जंगें, और उसके बाद इंदिरा गांधी का ज़माना, इमरजेंसी, और उसके बाद में यानी नरेंद्र मोदी के आने तक जो हालात हिंदुस्तान की सियासी तारीख में गुजरे हैं, उन्होंने उसको बहुत ही बेवकूफ़ी और जुनून के साथ बयान किया है। और ये जो है, ऐसा लगता है कि ये किताब उनका एक बयानिया है, और बयानिया के साथ साथ जो हिंदुस्तान की तारीख की सियासी तारीख का एक आईना है। इससे क्या मैसेज होता है मैडम? इससे मैसेज होता है कि हमारी नौजवान नस्ल जो है सियासी तारीख को पढ़ सके और समझ सके कि उन्होंने इस किताब में हिंदुस्तान के मुसलमानों के जज्बात का भी इजहार किया है। इंसानी जज्बात क्या थे, एहसासात क्या थे, फसादात के ज़माने में किस तरह से मुसलमानों के साथ बर्ताव किया गया था, तमाम बातें बिल्कुल उन्होंने खुल कर कही है। बहुत ही बेबाकी से कही है और बहुत ही जरूरतमंदाना तरीके से कही है। तो ये बहुत ही अच्छी किताब है, बल्कि हम समझते हैं कि तमाम नौजवान नस्ल के लोगों को ये किताब पढ़नी चाहिए, ताकि वो हिंदुस्तान की सियासी तारीख से वाकिफ हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया।